Dear second year students, in previous session we have seen national programs on blindness. Now we will see the current trends in management of ophthalmic condition. Trends means changing, okay, change or movement in a particular direction. A trend in a management of eye condition is a change that is taking place in present days in ophthalmology. May it be in eye treatment and eye surgery which affects the eye care as a whole. That means जो समय के हिसाब से जो चेंज आए हैं, ट्रेंड्स जो चेंज हुए हैं, जो मूवमेंट्स चेंज हुए हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट होने लगा है, आई सर्जरी, ओके, तो ये सब करंट ट्रेंड्स चेंजेस आए हैं मैनेजमेंट में, किसके, आई डिसऑर्डर के. फर्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑन ड्राई आई डिसीज ट्रीटमेंट के लिए क्या आया है. मैनेजिंग द आई इन्फ्लेमेशन प्रोब्ड helpful to patient with dry eye disease, and current treatment is based on the use of topically applied artificially tear products, lubricants, tear retention management, stimulation of tear secretion and using anti-inflammatory drugs. That means अब जो नया चेंज आया है, अगर ड्राई आई डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट करना है तो यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल, अगर मान लो ड्राई हो रही है तो आर्टिफिशियल हम लोग टीयर प्रोवाइड करते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉप्स. ठीक है, आर्टिफिशियल टीयर प्लस आई ड्रॉप वी विल प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट. देन if there is inflammation in the eye, we are giving anti-inflammatory drugs to the patient. Okay. Second one, current trends in the treatment of diabetic macular edema. लेज़र थेरापी फॉर द डायबिटिक मैकुलर एडिमा, मतलब लेज़र थेरापी ट्रेंड्स जो चेंज हुआ है उसमें लेज़र थेरापी आ गया है. किस चीज़ के लिए? डायबिटिक मैकुलर एडिमा के लिए. ठीक है. देन थर्ड है आपका ट्रेंड्स इन प्रिवेलेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर एलर्जी. अब जो ऑक्यूलर एलर्जी होती है उसके लिए क्या आया है? उसके लिए आपके पास आया है antihistamines and corticosteroids drugs, okay, and emphasis on immunotherapy as an alternative treatment modality. ठीक है, modality मतलब आप इसकी दर को, जो मॉडलिटी डिसीज की रेट है उसको आप कम कर रहे हैं, इम्यून थेरापी को आप मजबूत कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. देन रीसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोकोमा मैनेजमेंट. अब ग्लोकोमा मैनेजमेंट के लिए क्या आया है? Recent studies show that gene replacement means gene to replace the function of a non-working or missing gene. ठीक है, जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं उधर पे हम लोग जीन रिप्लेस करेंगे. may improve visual potential in inherited retinal disease, जिससे कि improve हो सके visual activity, that means retinal disease. These include procedure that restore filtration through Scalman's canal, deep sclerectomy, then viscocanalostomy or canaloplasty. That means these are the procedure we are conducting to treat the glaucoma. Okay, like sclerectomy, then canaloplasty. Okay. A recently developed non-penetrating glaucoma surgical approach may restore physiological outflow routes in primary open angle glaucoma with less risk of severe postoperative complication. जैसे कि कैनलोप्लास्टी हम लोग ज़्यादातर ओपन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि लेस रिस्क होता है. ओके. देन एडवांस इन कैटरेक्ट सर्जरी. अब कैटरेक्ट सर्जरी में क्या एडवांस है? Recent advance in cataract surgery have increased the safety and efficiency of this common procedure. New IOL design, IOL means intraocular lens design technologies that have helped patients minimize their need for glass at most distance. Means with the help of IOL designs techniques के वजह से क्या होगा, आपको help मिल जाता है कि आपको कितने कौन से ग्लास की नीड है. Further invention of ophthalmic viscosurgical devices reduce the risk of endothelial decomposition and corneal edema.
These innovations have transformed the goal of cataract surgery from purely visual rehabilitation to a refracted procedure as well. That means जो IOL डिज़ाइन जो आ गई है, जो टेक्निक्स आ गई है, उसके थ्रू आप तो जो हो रहे हैं, आपको नीड पता चल जाती है कि आपको कौन से ग्लास की नीड है, प्लस इसके थ्रू आपको मतलब विस्को सर्जिकल डिवाइस के थ्रू ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब विस्को ऑप्थाल्मिक विस्को सर्जिकल डिवाइस के थ्रू रिस्क जो होता है, जो एपिथेलियम डीकम्पोजिशन होता है, उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और कॉर्नियल एडिमा नहीं होता है। तो मीन्स ये सब IOL डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ के वजह से हो रहे हैं एंड विस्को सर्जिकल डिवाइसेस के वजह से ये रिस्क जो है एपिथेलियल डीकम्प्रेशन जो होता है, कॉर्नियल एडिमा जो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उस डिवाइस की वजह से। नाउ वी विल सी द हॉस्पिटल कॉर्नियल retrieval program. That means Eye Bank Association of India have started hospital corneal retrieval program. ठीक है, आई बैंक जो होता है वो एसोसिएट किया है इंडिया में, क्या स्टार्ट किया है, हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम। रिट्राइवल मीन्स करेक्शन, ठीक है, और रीफ्लो, ओके, इन हॉस्पिटल फॉर आई डोनेशन बाय sensitizing and them regarding corneal blindness and benefits of corneal transplantation. That means in this we are motive the patients relatives, or we are counseling them and for the आई डोनेशन पर्पस, ओके, हम लोग मोटिव करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं जिससे कि वो आई डोनेट कर सकें, ठीक है। तो और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, देम रिगार्डिंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर क्विक कन्वीनियंट इन्यूक्लिएशन और कॉर्नियोसैक्युलर बटन एक्सट्रीशन। मतलब कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से बचने के लिए हम लोग कॉर्नियल सैक्युलर बटन एक्सट्रीशन भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्लाउडी कॉर्निया है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नियल बटन रिमूव्ड, मतलब उससे हम लोग क्या करेंगे, जो एडिमा जो है, जो क्लाउडी अपीयरेंस है कॉर्निया का, हम लोग एक्सट्रीशन के थ्रू थोड़ा सा कट देकर हम लोग वो रिमूव करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉर्निया बटन रिमूव्ड। और इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको स्टिचर कर देते हैं, ओके। नाउ इन अदर सेशन वी विल सी द आई कलेक्शन।